students, welcome back to my YouTube channel DEA Academy and I am Dheeraj Arora. Today we are going to discuss our limitations of Coulomb's law. In our last lecture we have done Coulomb's law and its derivation. However, today we are going to do limitations which are here I am giving the heading limitations of Coulomb's law. It says this law is not valid for extended charges, जिसका मतलब है कि ये सिर्फ पॉइंट चार्जेस के लिए एप्लीकेबल है. एक्सटेंडेड चार्जेस मीन्स लार्ज चार्जेस अगर मेरे पास हैं तो ये उनके लिए एप्लीकेबल नहीं है, ये सिर्फ पॉइंट चार्जेस के लिए एप्लीकेबल है. इसमें हम एक्सटेंडेड चार्जेस यूज़ नहीं करते, लार्ज चार्ज हम उसमें नहीं यूज़ करते. सेकेंड इज दिस लॉ इज नॉट वैलिड for the charges which are in motion. हम इसमें वो वाले चार्जेस भी नहीं लेंगे जो चार्जेस मोशन में हैं, हम इसमें सिर्फ वो वाले चार्जेस लेंगे जो रेस्ट पे रहते हैं. ठीक है, बिकॉज इन दिस चैप्टर वी आर already have discussed कि we are going to study those charges which are at rest. That is why the name of the chapter is also electrostatics. So, next we move on to आज हमारे लेक्चर में हम तीन चीजें डिस्कस करेंगे, जिसमें सबसे पहली है यस जिसमें फर्स्ट सबसे पहली होगी डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट, जिसको हम K से डिनोट करेंगे. सेकंड सुपरपोजिशन प्रिंसिपल, एंड योर थर्ड वन विल बी कंटिन्यूअस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन. कंटिन्यूअस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन. सो ये तीनों आर्टिकल्स हम वन बाय वन करने वाले हैं. सबसे पहले हम करेंगे डाई इलेक्ट्रिक कॉन्स्टेंट. यस, इट सेज दैट व्हेन द चार्जेस आर situated in medium other than free space, then F medium equal to 1 by 4 pi epsilon Q1 Q2 अपॉन R स्क्वेयर. हमने लास्ट टाइम कूलम्स लॉ किया था, जिसमें हमने F किया था F इक्वल टू 1 बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपॉन R स्क्वेयर, जिसमें एप्सिलॉन नॉट यूज़ किया था विच वाज फॉर फ्री स्पेस. यहाँ पे एप्सिलॉन क्या है मेरा, एप्सिलॉन हेयर इज यूज्ड फॉर मीडियम. Here, when they are in vacuum, then F naught equal to 1 by 4 pi epsilon naught
Q1 Q2 upon R square. Let give it number 1 and give it number 2. Next here we write down dividing 2 by 1. ये 2 है, ये 1 है. 2 को सो F naught upon F m epsilon upon epsilon naught, जिसको हम बोलेंगे E R epsilon R, which is also called relative permittivity. So relative permittivity, or it can also be written as relative electrical permittivity, जिसको हम K से डिनोट करते हैं. अब हम इसकी डेफिनेशन करेंगे. डेफिनेशन ऑफ डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट और relative electrical permittivity K of a medium is the ratio of electrical permittivity of medium to the absolute electrical permittivity of free space. यहाँ से आप देख ही रहे हैं, which is electrical permittivity, or K also you can write it as, or K, which is equal to epsilon over epsilon naught, where epsilon is the electrical permittivity of the medium and epsilon naught is the electrical permittivity of the free space. So from here we can define our relative electrical permittivity, which is E R epsilon R, which is epsilon upon epsilon naught. Our next topic here is principle of superposition. और forces between multiple charges. इसमें हम पढ़ेंगे जैसे कि फोर्सेस बिटवीन मल्टीपल चार्जेस से मेरे को क्लियर है कि इसमें 2 चार्जेस नहीं होंगे, इसमें 2 से ज़्यादा चार्जेस होंगे. तो इसकी डेफिनेशन है मेरे पास, टोटल फोर्स ऑन ए गिवन चार्ज is the vector sum due to number of other charges exerted on that charge. Individual force is unaffected by the
presence of other charges. So अब मान लेते हैं एक चार्ज है मेरे पास यहाँ पे Q1 जिसका डिस्टेंस है R1। एक चार्ज मेरे पास यहाँ पे पड़ा है Q2 जिसका डिस्टेंस है से R2। सिमिलरली एक चार्ज मैं यहाँ ले लेता हूँ Q3, इसका डिस्टेंस है मेरे पास R3 and we have number of charges just like this, and the last charge which I have say Rn I have, sorry Q1 I have, and its distance is say Rn. अब मेरी डेफिनेशन कहती है टोटल फोर्स ऑन ए गिवन चार्ज, मैं ये वाला चार्ज अज्यूम कर लेता हूँ यहाँ पे Q1 चार्ज इज द वेक्टर सम ड्यू टू नंबर ऑफ अदर चार्जेस। ड्यू टू नंबर ऑफ अदर चार्जेस कौन कौन से? Q2, Q3, Q4, Q5 एंड सो ऑन Qn चार्जेस हैं ऑन फोर्स एक्सर्टेड ऑन दैट चार्ज। दैट इज इट सेज दैट total force on Q1 F1 vector will be equal to F12 vector plus F13 vector plus F14 vector plus so on plus F1n vector। अब मेरे को क्या फाइंड करनी है? फोर्स ऑन 1 ड्यू टू 2, फोर्स ऑन 1 ड्यू टू 2, F12 विल बी इक्वल टू K Q1 Q2 अपॉन R21 स्क्वायर R21 कैप इक्वल टू K Q1 Q2 R1 minus R2 and this could also be written as R1 vector minus R2 vector. This we have already studied in Coulomb's law. इस फॉर्म को मैं अब इस फॉर्म में लिखने जा रहा हूँ instead of this form, so that our solution will become easier than this, right? To write in this form. I am going to write it in this form. All the forces which I am going to write out, because in Coulomb's law we have studied like this before, Q1 Q2 upon R1 minus R2 square into R1 minus R2 vector. So this I am going to write it in this way, K Q1 Q2 upon R21 square into R21 cap. Similarly, my F13 will be K Q1 Q3। अब मेरे पास कौन कौन सा चार्ज है यहाँ पे? Q1 और Q3 अपॉन R31 स्क्वायर इंटू R31 कैप एंड सो ऑन। एक ये वाली लाइन लास्ट डेफिनेशन, इसको पहले मैं आप लोगों को बता दूं। वो कहता है ईच इंडिविजुअल फोर्स इज अनअफेक्टेड बाय द प्रेजेंस ऑफ अदर चार्जेस। दैट मीन्स दो फोर्सेस, अगर Q1 Q2 के बीच में जितनी फोर्स है वो फोर्स अनअफेक्ट रहेगी बाय द प्रेजेंस ऑफ द अदर चार्ज। यहाँ पे अदर चार्ज कौन है? Q3। Q3 क्या है? अदर चार्ज वो की वजह से उनकी जो फोर्स है, इंडिविजुअल फोर्स है Q1 2 की, वो उसके ऊपर कोई फर्क नहीं पड़ेगा। लेकिन अगर नेट फोर्स अगर मैं निकालता हूँ, हाँ उसके ऊपर ज़रूर उसका फर्क पड़ेगा, लेकिन इन दोनों की इंडिविजुअल फोर्स के ऊपर कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। यही लाइन में मेरी कहती है ईच इंडिविजुअल फोर्स इज अनअफेक्टेड बाय द प्रेजेंस ऑफ अदर चार्जेस। तो आगे हम इसको कंटिन्यू करते हैं हमारे इस
डेरिवेशन को, इसको भी F1n विल बी K Q1 Qn अपॉन R n1 स्क्वेयर इंटू R n1 कैप, राइट। सो इसको हम 1 मान लेते हैं और ये सारी जो वैल्यूज है F12 F13 F1n की पुट कर देते हैं नंबर 1 में। देयरफॉर F1 वेक्टर इक्वल टू K ब्रैकेट Q1 Q2 अपॉन R21 स्क्वेयर इंटू R21 कैप प्लस अपॉन R31 स्क्वेयर इंटू R31 कैप प्लस ऑन Q1 Qn अपॉन Rn1 इंटू R1 कैप and bracket closes. Now therefore F1 vector will be equal to F12 vector plus F13 vector, F14 vector plus and so on, plus F1n vector. F2 vector will become F21 vector plus F23 vector plus F24 vector plus and so on, plus F2n vector and so on, and it becomes Fn vector will be equal to Fn1 vector plus Fn2 vector plus and so on. Fi vector will be equal to K here, yes, sigma I equal to 1 to n Qn upon Rn I square Rni cap. So this will be by required result, and this is called principle of superposition. Yes, last topic करेंगे which is continuous charge distribution. It is continuous charge distribution. It is the extremely closed space charges from continuous charge distribution. ये कहता क्या है कि इट इज दी एक्सट्रीमली क्लोज स्पेस चार्ज फ्रॉम कंटिन्यूअस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन. सपोज मेरे पास एक यहाँ पे रॉड है, इसके ऊपर पूरी रॉड के ऊपर चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड है, तो यहाँ पे कोई एक छोटा सा पार्ट में कट कर लेता हूँ. इस छोटे से पार्ट में से कट करने के बाद आई विल फाइंड आउट दी चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड ऑन दी होल सरफेस. सो ये कैसे करना है, एंड व्हाट आर दे कॉल्ड
दिस वी आर गोइंग टू डिस्कस हियर, जिसमें सबसे पहले मेरे पास आता है, फर्स्ट इज चार्ज डेंसिटी, that is charge per unit dimension। इसमें अलग अलग सबसे पहले आएंगे मेरे पास यहाँ पे, फर्स्ट आएगी लीनियर चार्ज डेंसिटी, लीनियर चार्ज डेंसिटी, जिसको हम डिनोट करते हैं लैम्डा से। लीनियर चार्ज डेंसिटी में हम क्या करेंगे, इसमें एक सिलेंड्रिकल रॉड लेंगे, उसमें एक स्मॉल से इट्स लेंथ इज एल, इसकी स्मॉल कटिंग ले लेते हैं, रिज्यूम कर लेते हैं डी एल, जिसपे स्मॉल चार्ज है डी क्यू। देयरफॉर लैम्डा इज इक्वल टू डी क्यू अपॉन डी एल implies dq will be equal to lambda into dl. So this is your linear charge density. Similarly, 2 is my superficial charge density, इसको हम डिनोट करते हैं सिग्मा से, एंड इसके लिए एक स्क्वायर ले लेते हैं इसे, और इसमें एक छोटा सा पार्ट ले लेते हैं डी ए, जिसका एरिया है ए, इसमें से छोटा सा एरिया कट कर लेते हैं डी ए, जिसके ऊपर चार्ज क्या है डी क्यू। सो देयरफॉर सिग्मा इज इक्वल टू डी क्यू अपॉन डी ए, यहां से डी क्यू हो जाएगा मेरा सिग्मा डी ए। नेक्स्ट इज माई वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी, जिसको हम रो से डिनोट करते हैं। इसमें क्या करता हूं मैं, एक क्यूब ड्रॉ कर लेता हूं, यस, इसमें से एक छोटा सा पार्ट निकाल लेता हूं, विच विल बी से डी वी, और इट विल बिकम रो विल बी इक्वल टू dq upon dv implies dq is equal to rho dv. So this finishes our today's lecture, in which we have studied linear charge density, superficial charge density and volume charge density. ये तीनों फॉर्मूले हमें हेल्प करेंगे न्यूमेरिकल सॉल्व करने में। Thank you.